عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آئیے آج ہم لوگ نویں جماعت کی کتاب دور پاس کا 7واں سبق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نظم اردو کے بہت ہی مقبول معروف شاعر نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں پہلے ہم مختصر جان لیتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہندوستانی ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا بے شمار ذخیرہ موجود ہے اور انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، جیسے روٹیاں، بنجارہ، آدمی نامہ، ہولی، مفلسی وغیرہ مشہور نظمیں ہیں۔ انہوں نے یہاں کے پھل اور موسموں پہ اور مشہور شخصیات پہ بھی نظمیں لکھی ہیں۔ تو آئیے ہم اس نظم کا لطف لیتے ہیں۔ اس نظم میں 4 بند ہیں اور بہت آسان الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ نام سے ظاہر ہے برسات اور پھسلن۔ پھسلن جیسے پھسل کر گر جاتا ہے کیچڑ میں، کچی سڑکوں پہ اور پانی پہ پھسل جاتا ہے، تو اسی موضوع پر انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ برسات کا جہاں میں لشکر پھسل پڑا، بادل بھی ایک طرف سے ہوا پہ پھسل پڑا، جھڑیوں کا میں بھی آ کے سراسر پھسل پڑا، چھتا کسی کا شور مچا گر پھسل پڑا، شور مچا کر پھسل پڑا، کوٹھا جھکا اٹاری گری در پھسل پڑا۔ اس بند میں شاعر نے موسم برسات کا ذکر کیا ہے، اور برسات وہ جو موسلا دھار نہیں بلکہ جھڑی لگی ہوتی ہے کئی دنوں تک، اور بادل ہواؤں کے ساتھ آتے ہیں اور چھتا اور جو کچے مکانات ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اس میں۔ تو اسی کا ذکر کیا ہے کہ کوٹھا جھکا اٹاری گری۔ اٹاری کہتے ہیں جو چھت کے اوپر چھوٹا سا کمرہ بنا ہوتا ہے، در منے دروازہ، پھسل پڑا یعنی گر پڑا۔ جھڑیوں نے اس طرح کا دیا آ کے جھڑ لگا، سنیے جدھر ادھر کو دھڑاکے کی ہے صدا، صدا مانے آواز۔ اور کوئی پکارے ہے میرا دروازہ گر چلا، کوئی کہے ہے ہائے کہوں تم سے اب میں کیا، تم در کو جھینکتے ہو میرا گھر پھسل پڑا۔ یہ دیکھیے، جھڑیوں نے اس طرح کا دیا آ کے جھڑ لگا ہوا ہے، ہلکی بوندیں پڑ رہی ہیں، اور موسلا دھار بارش نہیں بلکہ ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اور سنیے جدھر دیکھیے ادھر کسی کا در گرا، کسی کا گھر گرا، کسی کی دیوار گری۔ اور کوئی پکار ہے میرا دروازہ گر پڑا، کوئی کہے ہائے کہوں تم سے میں کیا بتاؤں تمہیں، تم تو اپنا رو رہے ہو، تم دروازے کے رو رہے ہو، میرا تو پورا گھر ہی پھسل پڑا، میرا پورا گھر ہی گر گیا۔ یہ دیکھیے اس کے اندر تصویر بنائی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے جو سڑک پہ جا رہا ہے اور یہ پھسل گیا۔ یہ پھسلنے کے دیکھیے نشانات، اور یہ چپل ہے، اور یہ اس کی ہاتھ میں جو وہ چھتری تھی وہ چھتری ادھر گری۔ یہ دور سے بچانے کو دوڑ رہے ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، اور کچھ لوگ یہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک منظر ہے برسات کا اور جھڑی لگی ہوئی ہے۔ یہ خوبی ہے نذیر اکبر آبادی کی کہ منظر کشی بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ چکنی زمین پہ یہاں تئیں کیچڑ ہے بے شمار، کیسا ہی ہوشیار پہ پھسلے ہے ایک بار، نوکر کا بس کچھ اس میں نہ آقا کا اختیار، کوچے گلی میں ہم نے دیکھا ہے کتنی بار، آقا جو ڈگمگائے تو نوکر پھسل پڑا۔ اب دیکھیے اس نے منظر کی ہے کہ عام طور پہ گاؤں دیہات میں، اب تو شاید پکی سڑکیں ہو گئیں، پہلے کچی سڑکیں تھیں، چکنی مٹی ہوتی تھی۔ تو لکھا ہے چکنی زمین پہ جائیں کیچڑ ہے بے شمار، کیسا ہی ہوشیار ہو۔ وہ پھسلتا ضرور ہے
नौकर या हो या मालिक हो या आका हो, कूचे में गली में हमने देखा है कितनी बार, आका जो डगमगाए तो नौकर फिसल पड़ा। कूचे में कोई और कोई बाजार में गिरा, कोई गली में गिर के है कीचड़ में लौटता। रास्ते के बीच पाँव किसी का रपट गया, इन सब जगह के गिरने से आया जो बचा वो अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा। शायर इस बंद में कहता है कि कूचे मैंने गली में हो या बाज़ार में है, कोई गली में, अगर इन जगह से वो बच गया तो अपने घर के सहन में आके फिसल पड़ा और इसमें कोई नहीं बचता, चाहे वो नौकर हो आका, किसी का अख्तियार नहीं है। तो ये बरसात का मंज़र है और आजकल दिल्ली में यही मंज़र है कि लगातार कई दिन हो गए हैं और बारिश और ये झड़ी लगी हुई है और वक्त के मौसम की मुनासबत से ये नज़्म इन दिनों के हिसाब से बहुत ही मौजू है। आइए हम देखें इसके अंदर अल्फाज, मुश्किल अल्फाज। जहाँ, दुनिया, लश्कर, फ़ौज, मीना, बारिश, सरासर, तमाम, छत्ता, घास फूस की छत, अटारी, छत पर बना छोटा कमरा, झड़ी लगना, लगातार बारिश होना। और देखिए कोई और मुश्किल अल्फाज है। छींकना, दुखरा रोना, यहाँ तई यहाँ तक, आका मने मालिक, कूचा गली, रपटना फिसलना, सहन आंगन। ये 5 सवालात हैं। बरसात का लश्कर फिसल पड़ने से क्या मुराद है। दूसरे बंद में शायर ने झड़ी लगने के क्या असरात बयान किए। तो इन सवालात का जवाब मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं, मिसरे को मुकम्मल कीजिए। झड़ियों का मैं भी आगे सरासर फिसल पड़ा, कोई कहे हाय कहूँ तुमसे अब मैं क्या, कूचे गली में हमने देखा है कितनी बार, कोई गली में गिर के कहे है कीचड़ में लौटता, वो अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा। तो ये मिसरे नामुकम्मल थे, इनमें जो अशार में से देख के ढूंढ के इसे अब लिख लिया। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 4, नीचे दिए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सरासर, बाज़ार, इख्तियार, डगमगाना, सहन, ये अल्फाज हैं, इनके भी अभी हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। खानों के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। ये चंद अल्फाज दिए गए हैं, इनको कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है उनके खाने में लिखना है। तो मैंने मुज़क्कर के लिए 1 और मुअन्नस के लिए 2 लिख दिया है। तो बरसात क्या है, मुअन्नस। लश्कर 1 लिख दिया, ये मुज़क्कर। बादल मुज़क्कर, हवा मुअन्नस, दर मुज़क्कर, ज़मीन मुअन्नस, गली मुअन्नस, सहन मुज़क्कर, आका मुज़क्कर, अटारी मुअन्नस। तो इस तरह से ये मुज़क्कर मुअन्नस की शनाख्त हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि सवाल जवाब आपकी आसानी के लिए हमने ये कॉपी पे लिखा है। देखिए सवाल नंबर 1, बरसात का लश्कर फिसल पड़ने से क्या मुराद है। जवाब, बरसात का लश्कर फिसल पड़ने से मुराद है कि बारिश की वजह से फिसलन की वजह से जानदार बेजान सब अपनी जगह से फिसल कर गिर जाते हैं। दूसरे बंद में शायर ने झड़ी लगने के क्या असरात बयान किए हैं। दूसरे बंद में शायर ने झड़ी लगने के ये असरात बयान किए हैं कि बरसात में झड़ी लगने पर मुसलसल बारिश होती है। जिन लोगों के मकानात या इमारतें बोसीदा व खस्ता हालत में होते हैं वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जानी माली नुकसान भी हो जाता है। सवाल नंबर 3, बरसात की फिसलन से गली कूचों का मंजर कैसा हो गया है। बरसात की फिसलन से गली कूचों में कीचड़ जम गई है। कीचड़ की वजह से, गंदगी की वजह से रास्ता चलते वक्त लोगों का पैर फिसल जाता है और गिरकर कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। सवाल नंबर 4, इस नज़्म में किन किन चीज़ों के फिसलने का जिक्र है। इस नज़्म में लश्कर, बादल, छत्ता, अटारी, दर, दरवाज़ा, घर, आका, नौकर के फिसलने का जिक्र है। आखिरी बंद में कहाँ कहाँ फिसलने का जिक्र हुआ है।
आखिरी बंद में गली, कूचे, बाजार और सहन में फिसलने का जिक्र हुआ है। तो ये 5 सवालात थे। अब देखिए जुमले बनाने का, देखिए अल्फाज के जुमले बनाने हैं। सरासर तुमने सरासर झूठ बोलकर मुझे इस जुर्म में फंसा दिया है। ये देखिए अख्तियार ज़िंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा का अख्तियार है। ये देखिए डगमगाना, सैलाब का पानी कश्ती में आने से कश्ती ने डगमगाना शुरू कर दिया। सहन, बरसात में सारा सहन पानी पानी हो गया। बाज़ार, ईद के मौके पर बाज़ार में रौनक हो जाती है। तो ये थे लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करना। तो मुझे उम्मीद है कि ये नज़्म बरसात और फिसलन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नज़ीर अकबर आबादी की शायरी आपने देखी, और मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इनमें से सवाल ज़रूर आएंगे। इसी के साथ हम मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया।